Dear student, I am Dr. Reema Srivastav. Welcome you all in this class. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पे एक वीडियो दिखाना चाहूँगी जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। It is a kingdom with multicellular organisms known as plants. There are about 287,000 species of plants. The plants in Kingdom Plantae can be divided into two groups considering presence or absence of flower. A flowering plant in simple terms is a plant that at some point during its life cycle produces a flower. A flowering plant is called an angiosperm. All flowering plants produce seeds. Angiosperms grow seeds inside a protective shell called the ovary. As the plant matures, what was the ovary becomes the fruit of the plant. These plants are well adapted to life on land and show various adaptations to conserve water. They can be divided into two groups according to the number of cotyledons in the seed. Plants that cannot produce flowers are known as non-flowering plants. These non-flowering plants again can be divided into two groups according to the ability of producing seeds.
Some non-flowering plants still produce seeds. This type of plant is called a gymnosperm. Gymnosperms have what are called naked seeds, because they are not covered by anything. Gymnosperms do not produce fruit. Some non-flowering plants do not produce seeds. Mosses and ferns reproduce by spores instead of seeds. Spores grow on the underside of fern leaves and in moss. The spores dry out and fall off the plant. Once they are exposed to a moist environment, the spores can begin growing into a new plant. Hey, buddy. Wow, pretty colors and lovely smell. Let's learn about the parts of a flower and pollination. Petal. They give a flower its unique shape and are often brightly colored to attract creatures and insects. Sepal. It is a small part growing at the base of the petals that look like tiny leaves. Pedicel. The pedicel is the stalk or stem of a flower. They hold individual flowers in place. Receptacle. It is the thickened part at the bottom which holds the major organs. Stamen is the male organ of the flower consisting of two parts. Anther is responsible for the production of pollen, or the fertilizing part of a flower. Filament is the stalk that holds the anther and attaches it to the flower. The pistil is the female part of a flower. It's made up of the following. Stigma, the sticky bulb that we see in the center of the flower. Style, the long stalk upon which the stigma rests. Ovary, the base of the pistil at the bottom of the flower. And the ovules, these are the flower's eggs. A flower with both male and female parts is known as a perfect flower. For example, roses and lilies. A flower that is missing male or female parts is an imperfect flower. For example, squash and cornflowers. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। मैं डॉक्टर रीमा श्रीवास्तव आपको पेपर 3 एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की 3rd और 4th यूनिट पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी क्या है? प्लांट एम्ब्रियोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम प्लांट के सेक्सुअल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम एंथर और ओव्यूल का डेवलपमेंट, माइक्रो और मेगा स्पोरोजेनेसिस, गैमीट फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म को पढ़ते हैं। ग्रीव ने सबसे पहले 1682 में अपनी बुक एनाटमी ऑफ प्लांट्स में ये बताया कि स्टेमेंस जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर का।
कॉलर्यूटर ने 1761 में ये बताया कि पॉलन ग्रेन्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं के थ्रू पॉलिनेशन प्रोसेस होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। स्ट्रैसबर्गर ने 1884 में बताया कि मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को सिनगैमी कहते हैं। नवास्चिन ने 1898 में डिस्कवर किया था डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के प्रोसेस को। इंडिया में प्रोफेसर पी माहेश्वरी को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है और उनकी बुक एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेफरेंस बुक है एम्ब्रियोलॉजी की। उन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था रीसेंट एडवांसेस इन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। अब हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या होता है? प्लांट्स के लिए फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब कोई भी सीड जर्मिनेट करता है तो बहुत दिनों तक प्लांट में जो ग्रोथ होती है उसमें सिर्फ लीव्स प्रेजेंट होती हैं, जब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं होती। यानी फ्लावरिंग से पहले वाला फेज़ जो होता है वो वेजिटेटिव फेज़ कहलाता है और जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है प्लांट्स में तो उसे रिप्रोडक्टिव फेज़ कहते हैं। तो किसी भी प्लांट साइकिल में दो फेजेस होती हैं, एक वेजिटेटिव या एसेक्सुअल फेज़ और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव फेज़। क्लासिकल व्यू ये कहता है कि फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड शूट है जिसमें सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे ही ऑर्गन्स लीव्स की तरह फंक्शन करते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं वो एक एक्सिस पर अरेंज होते हैं और फ्लावर के अरेंजमेंट को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। आप जानते हैं सभी फ्लावर एक पेडिसिल से, ये आप देख सकते हैं, ये पेडिसिल है और इसके द्वारा किसी भी स्टेम से अटैच रहता है। अगर ये पेडिसिल प्रेजेंट होता है तो वो फ्लावर पेडिसिलेट कहलाता है। बहुत सारे फ्लावर्स में ये पेडिसिल एब्सेंट होता है, यानी फ्लावर जो है वो अपने बेस से ही डायरेक्ट स्टेम से अटैच रहता है और ऐसे फ्लावर्स को सेसाइल फ्लावर कहते हैं। एक टिपिकल फ्लावर में 4 वर्ल प्रेजेंट होते हैं जिसमें आउटर मोस्ट होता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम और ये चारों ही वर्ल्स, ये आप देख सकते हैं, ये कैलिक्स है इन ग्रीन कलर, पिंक कलर में कोरोला, ये स्टेमन्स और ये गायनोशियम। ये चारों एक वर्ल में अरेंज रहते हैं और इसके बेस को थैलेमस कहते हैं। ये इस थैलेमस पे अरेंज्ड रहते हैं। फ्लावर में हम 3 टर्म्स पढ़ते हैं, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर्स कौन से होते हैं? जिसमें ओवरी, ये आप देख सकते हैं ओवरी, ये सारे जितने भी अपेंडेजेस हैं यानी एंड्रोशियम, पेटल्स और सेपल्स, ये ओवरी के नीचे की तरफ से निकल रहे हैं, यानी इसमें ओवरी सुपीरियर है। ये फ्लावर्स हाइपोगाइनस फ्लावर कहलाते हैं। एपिगाइनस फ्लावर में आप देख सकते हैं ये ओवरी है और सारे अपेंडेजेस यानी ये एंड्रोशियम, सेपल्स और पेटल्स इसके ऊपर से निकल रहे हैं, यानी ओवरी इन्फीरियर है। इन फ्लावर्स को एपिगाइनस फ्लावर कहते हैं। और पेरिगाइनस फ्लावर में ओवरी हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर होती है। हाइपोगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल है ब्रिंजल, चाइना रोज। पेरिगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल हैं प्लम एंड रोज और एपिगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल हैं गुआवा एंड कुकुम्बर। अब आता है फ्लावर अरेंजमेंट। सबसे पहले आउटर मोस्ट वर्ल आता है कैलिक्स। कैलिक्स यूजुअली ग्रीन कलर का होता है और इसकी यूनिट को हम सेपल कहते हैं। यूजुअली किसी भी फ्लावर में 4 to 5 सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, पर इनके नंबर प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकते हैं। सेकेंड वर्ल आता है कोरोला। कोरोला कैलिक्स के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और ये अट्रैक्टिव कलर के होते हैं,
जैसे रेड, पिंक, येलो, पर्पल, ब्लू। कलर्ड पेटल्स का मेन फंक्शन होता है इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए। कोरोला की सिंगल यूनिट को पेटल कहते हैं। ये भी 4 to 5 नंबर होते हैं किसी भी फ्लावर में, लेकिन इनका नंबर भी वेरी कर सकता है। कुछ फ्लावर्स में, स्पेशली मोनोकॉट्स में, ग्रामिनी फैमिली में, सेपल्स एंड पेटल्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं और एक सिंगल लेयर बनाते हैं जिसको पेरियंथ कहते हैं। एंड्रोशियम थर्ड वर्ल होता है फ्लावर अरेंजमेंट में, और ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये स्टेमन से बने होते हैं और स्टेमन्स को माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। स्टेमन्स का नंबर डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट होता है। यूजुअली किसी भी फ्लावर में जो स्टेमन्स का नंबर होता है वो पेटल्स के इक्वल या उसके डबल होता है। एक स्टेमन दो पार्ट से बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट, और दो एंथर के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसके द्वारा दोनों लोब्स एंथर के आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और इन एंथर लोब्स में ही पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ और इनरमोस्ट वर्ल जो होता है वो गायनोशियम होता है। गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। गायनोशियम वन या मोर कार्पल्स से बना होता है। कार्पल्स को मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। एक टिपिकल गायनोशियम के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का फ्लैट सरफेस स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। इसके बाद में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये स्टाइल, और इसके बेस में होता है स्वेलन पार्ट ओवरी। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू सो मच।